Thank you again. And we all know that we gathered here with a shared concern over a significant public health issue that pose a very serious threat to vulnerable communities, particularly in India. And snake bites have long been a cause for alarm in several regions, especially in our country, where they lead to numerous fatalities and disabilities, disproportionately affecting farmers and many rural. And we know that India bears a substantial burden of snake bites related deaths. This issue often go overlooked. Like a recent study in 2020, it revealed that around 58,000 people in India succumb to snake bites each year. And that same study says that, and experts also believe that the numbers are actually higher and it's being underreported. And the consequences of snake bite envenoming can be severe, resulting in amputations and permanent disabilities. Sadly, many cases remain unreported due to limited healthcare access or victims seeking non-medical remedies. Availability and affordability of effective anti-venom, vital for treating snakebite envenoming, remains challenges for those in need, exacerbating the problem. But there is hope, like crucial interventions such as education and more awareness programs like today, and the provisions of anti-venom hold a key to significantly reduce the snake bite deaths and disabilities. So, in light of this issue and recognizing the urgency to address this pressing issue, Clean India Academy, in collaboration with UNICEF, prepared a session titled Preventing Avoidable Deaths, Tackling Snake Bites with Prevention and Effective Emergency Care. This timely session holds particular significance considering the current flood situations in different parts of India, where snake encounters are very common during and even after floods. Once people get back to their houses from camps or from their displaced. We are honored to have an esteemed joining us today to discuss crucial strategies and best practices that can make this. Together, we can work towards creating a safer environment and protecting the well-being of our communities. And thank you once again to all of you for joining us today. And I hope that this opportunity will make meaningful steps in providing awareness and also tackling the snake bite infection in India. So before beginning the session and moving on to our amazing set of, I would like to give a brief introduction to our first speaker, Manjeet Kaur Bal. She is a senior program manager at the Foundation for Ecological Security, boasting 2 decades of expertise in rural development. Her passion for environment protection drives her dedication to the cause. The keen bird watcher, she has actively promoted snake conservation in Chhattisgarh for past 15 years. At the Foundation for Ecological Security, she focuses on the promise of commons, contributing to sustainable rural development and environmental preservation. Dr. Manjeet's leadership and commitment make her a recognized figure in the field, ensuring a harmonious coexistence between humans and wildlife. And we are very privileged to have you here, ma'am. We are also looking forward to hear from you to learn more about the overall management of the snake bites. In the second part of today's session, we'll more talk about the treatment part of it, like how to medically handle the situation. But in the first session from Dr. Manjeet, we'll be hearing about the overall management, about the snakes, and how do we manage a snake bite situation. So I'm with host. I would like to welcome you, Dr. Manjeet, and we look forward to hearing. Okay, thank you, Spare India, and thank you, Vishal from UNICEF and all. आज जितने लोग आए हैं उन सभी के लिए आज जितनी बातचीत हमारे साथ होने वाली है, मुझे लगता है हिंदी में ठीक होगा। मुझे भी सुविधा होगी हिंदी में बात करने में, और अगर कहीं ट्रांसलेशन की जरूरत होगी तो आई थिंक आई विल ट्राई कि मैं ट्रांसलेट भी करूं, अदरवाइज फेयर इंडिया एकेडमी से भी सपोर्ट रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो
आज जो हम बात कर रहे हैं सांपों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक आपके साथ कुछ मैंने कोशिश की है कि बातचीत को एक रास्ता दिया जाए, एक तरीका दिया जाए। जैसे ही हम ये सांप बोलते हैं, हमारे हमारे अंदर बहुत से सवाल आते हैं। मैं अभी रिसेंटली किसी का 3 दिन पहले फोन आया और उन्होंने कहा कि सांप को लेकर आप अगर बात कर रही हैं तो मेरे अंदर पेन है। तो उसी को लेकर हम थोड़ी बातचीत शुरू करते हैं। आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं कवर कर रही हूँ कि जब हम नेचर के बारे में सोचते हैं, शायद टूरिज्म को लेकर बात हो या किसी भी तरीके से, तो नेचर हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा ड्रीम लेके आता है। बहुत हमारे आईज बिल्कुल खिल जाती हैं कि नेचर है, और उसकी हम शायद अपने जब थक जाते हैं तो हम नेचर की ओर जाते हैं। और इस नेचर में हम आजकल देखने का तरीका ये है कि वहाँ टाइगर दिखता है, वहाँ पे ये वाला वाइल्ड लाइफ दिखता है। आसपास के फूल पौधों में भी वो नेचर है और वो वाइल्ड लाइफ है। इसको हम धीरे धीरे देखना बंद करते जा रहे हैं। और उसको अगर हम देखें, छोटी तितली का भी एक कलर होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके आसपास जो बाम्बिया बनी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे आंखों का खेल है पूरा। और यही आंखें आपके जो देखने के तरीके को कैसे बदलती हैं वो आप देखेंगे। आप देखिए, मैं चिड़ियों की फोटो डाल रही हूँ। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन में कहा गया है, मैं बर्ड वॉचर भी हूँ। तो चिड़िया है, कितने प्रकार की हमारे आसपास चिड़िया हैं, हम कितनी देख पाते हैं, व्हाट एंड हाउ मच। इन सब फोटो को देख के जब हम ये सोचते हैं, एक सवाल उठता है कि व्हाट एंड हाउ मच वी टेक फ्रॉम नेचर। तो हम क्या क्या लेते हैं। बच्चों से अक्सर मैं ये सवाल करती हूँ, तो सवाल का उत्तर मिलता है कि हमें हवा मिलती है, हमें खाना मिलता है, हमें मिट्टी मिलती है, हमारा सारा जीवन उस नेचर पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब दूसरा सवाल उठता है कि हम नेचर को देते क्या है, ये सवाल बहुत दर्दनाक है। और कई बार इसके सवाल का जवाब आता है कि हमको नेचर को क्यों कुछ देना। तो इसको मैं बार बार कहती हूँ कि आप नेचर को देते तो जरूर हो, और देते क्या हो, और सबसे ज्यादा डिपेंडेंट कौन है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट आज भी नेचर पे जो है, जिस नेचर ने, जिस कॉमन्स ने उस आखिरी आदमी को आजीविका का सहयोग दिया है, लाइवलीहुड का सपोर्ट दिया है, उसकी खेती नेचर पे निर्भर है, उसका बाजार नेचर पे निर्भर है, उसका रोज का खान पान नेचर पे निर्भर है। और जब आप इसको देखते हैं कि हम क्या देते हैं नेचर को, तो आप देखिए नेचर को हम क्या देते हैं, तो ऑलमोस्ट हम डिजास्टर देते हैं। और डिजास्टर बहुत बुरी तरह देते हैं। हम ये पूरी स्थिति कैसे बिगाड़ते हैं। और इसी डिजास्टर के परिणाम में और चर्चाओं में जो बात निकल के आई है आज, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, कि ये परिणाम नेचर अपने से डिजास्टर नहीं ला रहा है, डिजास्टर हम उसको दे रहे हैं। और जब पूरी डिजास्टर की बात आती है तो इसकी बात सबसे ज्यादा आती है, जिसके लिए हमें बुलाया गया है, वो है स्नेक, सांप। इस पूरी बातचीत में जो जो सवाल आने वाले हैं या जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, वो दोनों हैं। हम कहते हैं सांप प्रभावित है, आप कहते हैं सांप से लोग प्रभावित हैं। आज भी अगर स्नेक बाइट से डेथ हो रही है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है, क्योंकि स्नेक बाइट, सांप हमें बाइट करने के लिए नहीं बना हुआ है, वो नेचर को संभालने के लिए बना हुआ है। हम कैसे इस सांप के साथ रह रहे हैं और ये सांप कैसे हमारे लाइफ में है कि हम वो बाइट और डेथ की बात कर रहे हैं, ये शर्मिंदगी का विषय है। जब भी ये चर्चा होती है तो एक बात जो मैं अक्सर कहती हूँ कि सड़क में इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या हम सड़क में चलना छोड़ चलते हैं? हम सावधानियां बढ़ाते हैं, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, हेलमेट्स आने लगे हैं, बहुत सारे नियम लगने लगे। लेकिन सांपों के साथ बाइट को लेकर जब बात हो रही है तो हम इसमें सावधानियां नहीं कर रहे हैं, वरन हम सांपों को मारने के बारे में सोचते हैं। हम पास सेकंड थॉट नहीं आता है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सांप को कैसे मारें। और जितने लोग इस बात को लेकर कॉल करते हैं, उनकी मैं चर्चाएं भी आगे बता रही हूँ कि कैसे। तो ये है कि आज की बातचीत शायद आपको लगेगी कि मैं प्रभावित कौन है, तो दोनों को लेके चल रही हूँ। सांप भी उतना प्रभावित है, स्नेक बाइट से डेथ्स भी उतनी हो रही है, और हम उन
के कारण सांप को सजाएं भी इतनी मिल रही कि सांप भी मारे जा रहे हैं। तो सांप की डेथ भी हो रही है और लोगों की डेथ भी हो रही है, और हमें उन दोनों डेथ पे बात करने की जरूरत है, तभी हम इसको एक इकोसिस्टम को बैलेंस कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि सांप कहाँ हैं, पाए जाते हैं, और उनसे डेथ होती कहाँ है। तो जो हमारे कॉल्स आते हैं, तो जो सांप की जो लोकेशंस होती हैं वो क्या होती है, अर्बन गार्डन्स में घूम रहा होता है, लोग सुबह जॉगिंग करने गए हैं और कॉल करते हैं सांप घूम रहा है, वो उसकी जगह है, वो घूमेगा। घर के लॉन में आते हैं सांप, कई बार अर्बन हाउसेस के घर के अंदर घुस जाते हैं सांप। इन सभी जगहों पे कोई डेथ की खबर हमें नहीं मिलती है। किसी शॉप में भी घुसते हैं, किसी फैक्ट्रीज में भी घुसते हैं। यहाँ तक भी हमारे पास बहुत रेयर केस आता है डेथ का या सूचना का। लेकिन जैसे ही हम किसी खेत की बात करते हैं या फील्ड की बात करते हैं, कल ही एक लेडी है अपने गाय के लिए घास काटने गई, तो सांप दिख गया, वो उसका बीपी हाई हो गया। वो सांप बहुत छोटा सा था, लेकिन भय में वो कुछ और दिख रहा था, उसकी भी मैं बात करूंगी। अब रात में जब रूरल एरियाज में जनरली लोग पीछे अपने घर के निकलते हैं, जिसको वो लोग बाड़ी कहते हैं, उनका जो न्यूट्रिशनल गार्डन होता है जहाँ घास भी होता है, उनकी जानवर भी होते हैं, वहां पे रात में वो जाते हैं। मोस्टली टॉयलेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वो प्रैक्टिसेस है या टॉयलेट दूर है, तो नाइट में जो उनका मूवमेंट है अपने बैकयार्ड में, वहां पे उनका एनकाउंटर सांप से होता है, जो हाई रिस्क में बदलता है। गांव के घर कच्चे होते हैं और उसमें बहुत सारे होल्स रहते हैं। कई बार ऊपर छानी, ऊपर वाला जो छत होता है, फ्लोर होता है, वहां से वो सांप एंटर करते दिखते हैं। कई बार नॉर्मल हाउसेस के एंटर करते दिखते हैं, या गांव में जो लोग बहुत जमीन पे सोते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा हमको कॉल्स आते हैं, या जितने रिपोर्ट्स अब तक आए हैं उसमें ये चीजें दिखती हैं। अब ये तो हुआ कि लोगों को सांप कब कब मिला और कहाँ डेथ हुई, लेकिन सांप का एनकाउंटर कैसे होता है, सांप किसी के घर में क्यों जा रहा है? तो अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सांप क्यों जा रहा है? पहला तो है कि सांप अपने फूड के लिए जा रहा है। उसको तो ना पता है कि वो फैक्ट्री है, ना पता है वो घर है, ना पता है कि वो आपका किचन है। उसकी आईज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फूड को देख रही है। वो फूड उसका फ्रॉग हो सकता है, वो फूड उसका माउस चूहा हो सकता है, वो फूड उसका कोई और स्नैक हो सकता है। तो आप उसकी आंखों से जब सोचेंगे तो आप आईज के लिमिटेशंस में तो ह्यूमन बीइंग है, देख ही नहीं पा रहा है। उसकी आईज तो सिर्फ अपने फूड का पीछा कर रही है, और वो बेचारा जैसे ही पीछा करते हुए कहीं पहुंचता है, अचानक आप दिख जाते हो और आप सब लोग उसको घेर लेते हो कि सांप आ गया है एक दुश्मन की तरह। और सांप की जो स्थिति होती है, जो डरावनी, वो इमेजिनेशन से बियॉन्ड होती है, क्योंकि आज तक शायद उसका पल्स भी नहीं नापा गया होगा ठीक से कि वो कितना वो बीपी हाई करके बैठा होता है। तो वो जो कंडीशन है, आप सोचिए कि वो भाग रहा होता है। वो ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर उसके दिमाग में, इमेजिनेशन में नहीं आता होगा, लेकिन जो भी है वो आप देखिए, ये एनकाउंटर्स है सांप के। अब वो टॉयलेट करने तो नहीं गया होगा इस फोटो में, वो जरूर ही अपने चूहे, बिल्ली या किसी और के लिए गया होगा, या ये हाइट में वो चूहे दौड़ा रहा होगा। तो ये एनकाउंटर्स है जो हमारी जो पूरी टीम है छत्तीसगढ़ में, नोवा नेचर वाले सबसे ज्यादा रेस्क्यू को लेकर यहाँ पे स्किल्ड माने जाते हैं, उनकी पूरी टीम है। और ये सारी टीम के साथ जो एनकाउंटर्स के फोटो हैं वो इस तरह के हैं। जब भी हम जाते हैं उन जगहों पे, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है सांप की कंडीशंस देख के। और उन कंडीशंस को जब आप देखते हैं और आप सोचते हैं कि बाइट कब किया होगा और कहाँ किया होगा, तो इन जगहों पे जो हमारे पास रेस्क्यू कॉल्स आ रहे हैं, वो वहां पे वो बाइट नहीं कर रहा है, वो एनकाउंटर्ड हो गया है, क्योंकि प्रॉपर लाइट्स हैं, क्योंकि प्रॉपर लोगों का इंटरेक्शन है। तो वो बाइट कहाँ कर रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो जहां बाइट कर रहा है, जो मैंने सबसे पहले आप लोग को जगह बताई थी, वहां पे वो बाइट कर रहा है। और वो जगह जो है वो है बाड़ी में है, किसी के घर के में सोते हुए जमीन में है। तो वो कहीं पे उनके घर के अंदर वो जहाँ पे लाइट नहीं है वहां पे। अब ये बाइट हो गया, सांप
डर के मारे बाइट किया, ये आप सभी जानते हैं। सांप के ऊपर पैर पड़ गया और सांप ने उसको अटैक किया। ऐसा लगता है वो अटैक नहीं किया, डिफेंस किया अपनी सुरक्षा के लिए। उसे लगा कि उसका खाना भी छीना जा रहा है और उसका फूड भी अफेक्ट हो रहा है। और इस कंडीशन में जब वो अटैक कर रहा है और तो क्या हुआ, ये बाइट हो गई। तो दो चीजें हैं, एक तो कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि सांप ने काटा भी है या नहीं काटा है। तो ये एक बड़ा सो रहा है, रात को उसको किसी ने काटा, उसे लगा कुछ कीड़ा वेड़ा काटा होगा और उसने छोड़ दिया। दूसरा है, कौन से सांप ने काटा ये नहीं पता होता है, तो एक फियर होता है कि सांप ने काटा है। तीसरी जो इंफॉर्मेशन है कि अगर काटा भी है और हमें पता भी है सांप ने काटा, तीसरा हमें वो भी पता है कि कौन से सांप ने काटा, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसके बाद हमें जाना कहाँ पे है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है। और अगर हमें वो भी पता है तो ट्रीटमेंट के लोकेशन पे पहुंच के भी हम शायद ठीक से उस चीज को संभाल नहीं पाते हैं, या जो पीएचसी और सीएचसी में टेस्ट पड़ता है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहां तक पहुंचते हैं, वहां पे वो मेथड्स अवेलेबल नहीं होती जिन मेथड्स की हम यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड्स की बात करते हैं। चूंकि मेरे अगले स्पीकर मेरे छोटे ब्रदर हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस पे बहुत डिटेल में जाएंगे। सेकेंड, जो बाइट के बाद होता क्या है, तो बाइट के बाद ट्रेडिशनल मेथड्स में हम जाते हैं और कोई ना कोई झाड़ फूंक के तरीके या कोई ट्रेडिशनल पूजा के तरीके से ये कहा जाता है कि सांप का जहर उतार दिया जाता है। मैंने ये बहुत कॉमन देखा है कि लोग फॉरवर्ड करते हैं कि ये वाली दवाई खाने से सांप का जहर उतर जाता है, ये वाला पौधा लगाने से सांप नहीं आता है। इस तरह का जो सिस्टम है पेट में, वो बहुत पढ़े लिखे लॉजिकल लोग भी इसको शेयर करते हैं। ये एक सेकेंड जो हमसे गलतियां होती हैं और जहां बाइट के बाद अफेक्ट होता है वो है। थर्ड है कि सब कुछ पता है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, टाइमली लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आप देखेंगे कि बाइट कई बार 3 से 4 घंटे से लेकर 8 घंटे के रेंज में भी बाइट के बाद अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आप बचाए जा सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का इशू होता है कि हम कैसे पहुंचे और कहाँ पहुंचे, ये इंफॉर्मेशन की कमी होती है। कोई कनेक्शंस नहीं होता है, टेलीफोनिक कनेक्शंस की जो जरूरत है कि इन्फॉर्म कर सके, रेडीनेस तैयार की जा सके, लोगों से बात करके उसको हम तैयार कर सके, वो भी नहीं होता है। और अगर वो किसी लोकेशन पे पहुंच गए तो अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी वेनम भी नहीं होता है। तो ये कंडीशंस हैं जो आफ्टर बाइट जो दिखाई देती है, जो डेथ की ओर लेके जाती हैं। चूंकि बाइट के बाद के ट्रीटमेंट की बहुत बड़ी जानकारी नेक्स्ट स्पीकर बोलेंगे, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही। ओवरऑल अगर कहा जाए तो गांव से लेकर, घरों से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेक्टर से लेकर पंचायतों तक कहीं पे भी प्रॉपर इस विषय को लेकर गाइडलाइन नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत अट्रैक्टिव या जानकारी से भरी हुई नहीं होती हैं। ये भी एक कारण रहा है कि ये हमारे लिए अनएड्रेस्ड सब्जेक्ट रहा है जो बाइट को बढ़ा रहा है। आपको थोड़ी बात कहें कि ये डेथ बाइट और अवेयरनेस को लेकर हम यहाँ बातचीत क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी जो चिंताएं हैं वो डर को लेकर हैं सांप को। जब हम डर को लेकर बात करते हैं तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है एज ए अवेयरनेस क्रिएटर या एज ए अवेयरनेस ग्रुप, हमारा सबसे बड़ा रोल जो हमने करना शुरू किया वो है वो फियर को क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट करना, और जो उसके स्नैक को लेकर जो मिथ और फैक्ट्स हैं उसको सामने लोगों के लेके जाना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस क्यूरियोसिटी ने ही सांप के प्रति सिंपैथी क्रिएट करना शुरू किया, और उस सिंपैथी ने सांप को बचाना शुरू किया, और उसने हमारी सावधानी करने के तरीके को भी बढ़ाया है और इंफॉर्मेशन को भी बहुत बड़े लेवल पे बनाया। ये बातचीत इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जितने ज्यादा लोग कम्युनिटी में इस बात को लेकर बात करेंगे, इस जानकारी को लेके जाएंगे, उतनी डेथ्स हमारी कम होंगी। अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन इस बात को बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अंजन मित्रा जी कुछ सवाल करना चाहते हैं, मैं शायद एंड में सवाल को लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सवाल अपने रखे रहें, क्योंकि दोनों प्रेजेंटेशन के बाद कंबाइंड सवाल हम लोग लेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं बात करती हूँ कुछ फियर और क्यूरियोसिटी के बीच जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं उस बात को लेकर।
तो हाँ, एक सिंपल आपको बात करते हैं कि लोगों की सांप की जानकारी कैसी है। जब भी कॉल हमको सांप के रेस्क्यू के आते हैं तो घर में बहुत जहरीला सांप घुस आया है, ये बताता है कि सांप के बारे में हमारे मन में ये भ्रांति है कि सांप जहरीला ही होता है, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। यहाँ 4 ही बिग 4 कहलाते हैं, यानी 4 प्रकार के ही सांप जहरीले होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। लोग कहते हैं हम खतरे में हैं, घर में सांप है, जबकि सांप उनको खतरे में पैदा करने नहीं गया है। तो सांप के माइंडसेट, कई लोग घर के बाहर ही खड़े हो जाते हैं कि सांप घर में है, और कई एक मजेदार बात है कि हर सांप या तो कोबरा होता है या करैत होता है, ये भ्रांति है। कई लोग कहते हैं जल्दी आइए सांप दौड़ा देगा, मतलब उनको लगता है कि सांप दौड़ाता है, जबकि सांप को ह्यूमन बीइंग दिख ही नहीं रहा है तो वो दौड़ाएगा कैसे, उसकी आईज के बारे में सोचिए। और आजकल बहुत कॉमन है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप को इन छोटे बच्चों से भी शायद नहीं मालूम है। खतरा ये है पेरेंट्स को कि वो शायद ये फील करते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो वो केयरफुली नहीं रह पाएंगे, लेकिन बच्चे भी उस बात को समझाए जा सकते हैं। तो ये फियर क्यों है इन सांपों को लेकर, जबकि और जानवरों को लेकर नहीं है, अट्रैक्शन है। तो इसका एक है कि वो जानते ही नहीं सांप क्या है। दूसरा, मिथ बहुत है, हमारी फिल्मों ने, समाज ने इसको लेकर मिथ डेवलप किया है। कुछ चीजें, हमारा डर जो है, फियर, वो इम्पोज्ड है। एक माँ या पिता अपने बच्चे को सिखाती है दूर हटो सांप, सांप है यहाँ, हमें ये नहीं सिखाया गया इसलिए हम शायद नहीं डरते हैं। बहुत मिसकंसेप्शन है, और वो कुछ अलग दिखता है, इनडिफरेंस है। तो क्या है ये सांप? तो अगर आप ध्यान देंगे सांप को, मैं मेरे इसको, तो सांप को जब हम देखते हैं, क्यों ये अलग सा डरावना सा लगता है? तो लिम्बलेस बॉडी है, हमको आदत है कि लोगों के 4 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ये अजीब सा लगता है चलता हुआ। बाइफर्केटेड टंग है, ये हमको लगता है जीभ जो है हमारी सिंपल होनी चाहिए, बाइफर्केटेड है। कान नहीं होते सांप के, तो वो अजीब सा लगता है। स्केल्स होते हैं बॉडी में, और स्केल्स वाले लोग जो है वो पानी में ना होके जमीन पे चल रहे हैं, और आईलिड्स नहीं है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं सांप के दिखने के जो सांप को बहुत अलग दिखाते हैं, और वो इनडिफरेंट हमें डर पैदा करता है या हमें अनइजी फील कराता है। ये देखिए सिंपल, अगर आप देखें, ये रेड स्नेक है, ये इसके बारे में, ये सबसे सिंपल, शाई, बहुत सीधा सांप कहलाता है। लेकिन इसको लेकर पहला कॉल जो आता है, बहुत बड़ा सा कोई खतरनाक सांप और ये काट लेगा, ये नॉन पॉइजनस है। नॉन पॉइजनस होके भी ये मार दिया जाता है, क्योंकि इसको लेकर लोगों को जानकारी नहीं है। ये आप देखिए 2 सांप हैं, एक है वुल्फ स्नेक और दूसरा जो है वो है करैत। करैत जहरीला होता है, वुल्फ उसके जैसा दिखता है इसलिए वुल्फ मारा जाता है, जबकि वो जहरीला बिल्कुल नहीं होता। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सैंड बोआ है और ये पाइथन है। लोग इस भय से सैंड बोआ के छोटे से डर जाते हैं कि वो पाइथन का बच्चा हो सकता है। तो ये फोटो का या ये बात रखने का कारण है कि ये हमारे गार्डन के लिए बहुत यूजफुल है, उपयोगी है। वो रेत के अंदर चला जाता है, ऊपर आ जाता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल अपने गार्डन से निकाल देना चाहते हैं, सिर्फ इस डर से कि ये सांप है और हमें काटेगा, जबकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये चेकर्ड किलबैक, आप देखिए चेकर्ड किलबैक है, इसको ढोड़िया पानी वाला सांप कहते हैं। इसका चाल ऐसी होती है जैसे तैरते हैं, और ये रेसर है जो बहुत साइलेंटली निकल जाता है, बहुत तेज चलता है। ये सांप आपके आसपास कहीं दिखते हैं, बेचारे अपने काम में बिजी होते हैं, जिनका कोई पॉइजन से लेना देना नहीं, लेकिन ये लगातार मारे जा रहे हैं। तो पहला जो बात है इस बात को रखने का कि सिर्फ अगर हमें जानकारी होगी कि सांप कहाँ हो सकता है, वो सांप क्यों यहाँ हो सकता है, या सांप को क्यों नहीं, तो ये अपने आप में बहुत सारा फियर को बताएगा, और जैसी फियर हटेगा शायद हम सांप के प्रति जो दुर्भावना है उससे भी बाहर आएंगे। अब है, ये बात फिर से शायद रिपीट होगी कि क्या सभी वेनमस है? तो एक कोई स्टडी की बात है, इंडिया इज होम टू नियरली 300 स्नेक स्पीसीज, 300 लगभग सांप यहाँ पे हैं, और मोस्टली नॉन वेनमस हैं। और जो वेनमस स्पीसीज हैं, और छत्तीसगढ़ में जो खासकर या बाकी जगहों में, ये 4 के अराउंड ही ये बातचीत ज्यादा है। और इन चारों में कोबरा, करैत,
इसको मैं हर्षजीत के लिए भी छोड़ रही हूँ, क्योंकि हर्षजीत इस पे वेनमस पे बात करेंगे, बाइट पे बात करेंगे, तो इन्हीं के बाइट को लेकर हमें ट्रीटमेंट पे बात करनी है। तो ये जो सांप है, हम बहुत सारे सांपों को नहीं भी पहचाने, सिर्फ इन जहरीले सांपों को या जिनके पास पॉइजन है ऐसे सांपों को काटते करें, पहचान जाए तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा मैनेज हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन के अलावा जो दूसरी बात है, जो इससे रिलेटेड मिथ है, वो भी हमें दूर करने की जरूरत है। जैसे सांप दूध पीता है, जबकि सभी जानते हैं कि सांप के लाइफ साइकिल में दूध हो ही नहीं सकता। गाय दूध देती है, ह्यूमन बीइंग के मदर्स का दूध बच्चों के लिए निकलता है, लेकिन सांपों के अंदर वो लाइफ साइकिल नहीं है। सांप जो है वो बीन बजाने से आ जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि उसका सुनाई नहीं देता, उसको कान नहीं होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सांप बदला लेता है। सांप की मेमोरी तो बहुत मुश्किल है कि इतनी होती होगी कि वो बदला लेगा। तो इस तरह की बहुत मिथ हैं जो अवेलेबल है, जिसको हमें फैक्ट्स में कन्वर्ट करना है। सांप का जोड़ा बदला लेने आता है, तो ये सब चीजें बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो आपको समझनी है और इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पास करना है। एक मिथ है कि सांप रेट स्नेक उसके पूंछ में जहर होता है, तो बहुत अजीब सा है कि पूरा जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें पूंछ कहाँ से आया, इसको देखना समझना है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लॉजिक अगर आप सांप काटने आया और वो खून चूस के चला गया, जबकि इस फोटो में आप देख रहे हैं कि वो जमीन में सोए इसलिए ऐसा हुआ। तो रेड बोआ अगर आप देख लेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, जबकि ये तस्करी का हिस्सा हो सकता है, इसलिए ये इस तरह का मिथ फैलाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं और जिसका फैक्ट है, लेकिन फैक्ट क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, जो जिसके लिए हमें सांप के मैनेजमेंट की जरूरत होती है और बाइट को कम करने की जरूरत पड़ती है, वो है कि सांप का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे इकोसिस्टम में। जो डिजास्टर को, इतने बड़े डिजास्टर को, लेकिन छोटे छोटे इस तरह के जो स्पीशीज होते हैं इकोलॉजी के, वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट स्पीशीज का गायब हो जाना इकोलॉजिकली इम्बैलेंस कर सकता है। तो उसमें सांप का बहुत बड़ा रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, रोडेंट कंट्रोल में। मैं आजकल लोगों को जरूर कहती हूँ कि आपके यहाँ अगर सांप है मतलब आप खुश होइए कि आपके यहाँ चूहे कम होंगे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ देखते हैं तो बहुत अलग होगा। अगर सांप मर जाएंगे तो वेनम भी खत्म हो जाएगा। तो अगर जो सांप आपको काट देंगे, आपको एंटी वेनम चाहिए तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगा। ऐसे अगर आप ढूंढने जाएं तो मैनी मोर चीजें हैं जो आपका जिज्ञासा आपको लेके जाएगी। इसके अलावा देखिए, सांप अकेले काट नहीं रहा है, सांप को काटने और खाने वाली भी एक पूरी संख्या है, और एक दूसरे के सब फूड है। ये फूड चेन भी सांप के खत्म होने से नुकसान कर सकता है। अब जो अंतिम बात मुझे आपके साथ करनी है वो है कि क्या करें, कैसे हम सांप के साथ रहें, कैसे मैनेज करें। तो एक तो है अपने आप को सेफ रखना है। कैसे सेफ रखना है वो बता रहे हैं। उसको इंटरफेयर नहीं करना, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपना लोकेशन है, उसका अपना फूड सिस्टम है, आप उसको ध्यान देना। सांप के बारे में सीखना है, और इस सीखने को वहां तक लेके जाना है जहाँ पे सब डेथ्स हो रही है। उन उन जानकारियों को सांप तक लेके जाना है, कम्युनिटी तक लेके जाना है जहाँ पे डेथ, कम्युनिटी से लोगों को अवेयर करना है जहाँ पे डेथ्स हो रही है। उन कम्युनिटी से लोगों को स्किल्ड करना है जो इस डेथ को लेके काम कर सकते हैं और कमी करने में आपकी सहयोग कर सकते हैं। अब हम स्नेक बाइट एक्सीडेंट को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो कुछ बहुत सिंपल से चीजें हैं जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि सांप आएगा कहाँ। जहाँ पे कुछ ऐसे कचरा होगा जहाँ चूहे आते होंगे, तो आप अपने घर को आसपास उन जगहों को अगर साफ रखेंगे तो चूहे नहीं आएंगे, चूहे नहीं आएंगे तो सांप नहीं आएंगे। आप अगर किसी रात में कहीं पे जा रहे हैं तो अपना टॉर्च का इस्तेमाल करें। आप रास्तों में चलते समय इसका ध्यान रखेंगे, ये अपने आप में आपका बहुत बड़ा काम है। अगर कहीं पे झाड़ी वाड़ी है और आप हाथ सीधे, सांप हो सकता है वहां पे, आप उसको सीधे हाथ ना डालें। पाथवे को अगर आपको साफ करना है तो साफ करने के लिए किसी डंडे या झाड़ू का उपयोग करें, हाथ का यूज ना करें।
आप देखिए बच्चे बॉल खेलते समय ऐसा हाथ डाल रहे हैं, जैसे कल एक महिला ने घास काटते समय सीधे डाला। तो अगर आपको घास काटना है तो स्टिक से पहले वहां मूवमेंट करिए, तो अगर सांप होगा तो वो भी अलर्ट होगा और वो वहां से चला जाएगा, और यू कैन सी कि वो चला गया है, तो तब आप वो खेत में और गांव में ये काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक मैनेजमेंट अगर करते हैं, आप मॉस्किटो लगा के आप सोइए, अपने आप को बचाने के लिए जो जो बेसिक चीजें अगर आप करते हैं, तो सांप की कुछ ही लोकेशन है, सांप आपके हर जगह नहीं, लेकिन आपने सांप के हर जगह को घेर के रखा है। तो ये थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी, उसके फॉर्मेशन, उसके बिहेवियर को समझने की चीज है। रेस्क्यूअर जो लोग हैं उनका कांटेक्ट रखने की जरूरत है। और इस पूरे अवेयरनेस को जो जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जुड़ी है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर सकें, कुछ क्रिएटिव्स बना के, कुछ वीडियोस बनाकर लोगों तक ले जा सके, तो इससे बस कुछ नहीं होगा। और हर गांव में कम से कम एक पर्सन होगा, स्टूडेंट्स होंगे जो इस बात को रख सके, जान सके और सांपों के साथ आपको रहना सिखा सके। तब हम बाइट बहुत कम कर सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में हम सब की जानकारियां हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सपोर्ट करेंगी, हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन, और जो यहाँ कई जगह 100 नंबर है, 112 नंबर है, ऐसे हेल्पलाइन में भी उन कॉन्टेक्ट्स का होना चाहिए कि वेनम कहाँ पे रखा हुआ है, कौन से लोग हैं जो सांपों के बारे में बात कर सकते हैं। जितनी अधिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी, उतना ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, और उतना कम केसेस होंगे, जीरो भी हो सकते हैं। ये तो ऐसा केस है जो जीरो किया जा सकता है। हम अभी भी, हमें शर्म है कि हमारे यहाँ डेथ हो रही है, जबकि इसकी जरूरत नहीं। मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगी। डॉक्टर हर्ष आ गए हैं क्या? हाँ मैम, ठीक है। यस यस। ओके, चलो, थैंक यू। क्वेश्चन लास्ट में लिए। Sir, before you start, I would like to briefly introduce you also. So thank you so much, Dr. Manjeet, for that very interesting session. We learned a lot about snakes and especially on how to live with them. So moving on to the next session, we have Dr. Harshit Singh Bal. He's a nature enthusiast, particularly fascinated by snakes. With extensive knowledge gained through observations, volunteering with snake rescues, and completing a herpetology course from BNHS, his passion for coexistence with other species is evident. Academically accomplished, he holds an MCH in pediatric surgery from Christian Medical College, Vellore, and currently serves as a professor at the consultant at the same institution. Driven to address the scale of snake bite-related fatalities, he aims to raise awareness in both scientific and general communities. So his valuable contributions, Dr. Bal seeks to mitigate the impact of snake bites and promote safer human-snake interaction for all species. We are very privileged to have you in the session, sir. Handing it over to you. Yeah, thank you for inviting. Sorry, I just in the between my cases, so I've got some time. So कोशिश करूंगा कि जितना मैं शेयर कर सकूं. मैं देखता हूं अगर I can share from here, or I request. So you would be able to Manjeet, share your co-host. yeah, I just checked because I'm just. I can share. Then you share actually. Okay, you continue, start this time. Yeah, sure. So as जैसा बोला मंजीत ने, स्नेक्स और उसके प्रति जो भावनाएं हैं वो तो एक तरफ है,
बट दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा है इन भावनाओं, ये बेसलेस नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स होते रहे हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो रिमार्केबल है। अगर आप देखेंगे, तो क्या मैं इसको ये कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ? नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा, यू जस्ट से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड या। सो अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जो एस्टिमेट्स WHO के हैं, और चूंकि ये सारे एस्टिमेट्स आर एक्चुअली अंडर एस्टिमेट्स हैं, वो बहुत ही कम संख्या है जो एक्चुअली में हुई है, क्योंकि इनकी कोई एक्यूरेसी अभी नहीं है और डाटा कलेक्शन बहुत पुअर रहा है स्नेक बाइट के मामले में। और करीब करीब 4.5 to 5.4 मिलियन पीपल जो है अफेक्ट होते हैं। अगर इंडिया में हम जानते हैं कि कुछ डाटा आए हैं जो वर्बल बायोप्सी के थ्रू है, वर्बल ऑटोप्सी के थ्रू है कहना चाहिए, जिसमें ये लोगों से पूछ के लोगों ने पता किया है, क्योंकि गवर्नमेंट डाटा एक्चुअली में कहता है कि 2000 से 3000 डेथ्स पर ईयर, बट स्नेक बाइट डेथ्स आर मोर देन 50,000 इंडिया में भारत में अकेले ही। और ये तो हम डेथ्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इससे कई गुना ज़्यादा डिसेबिलिटीज, एम्पुटेशंस, स्कारिंग्स ये सब होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो इट्स लाइक हम बड़ी बीमारियों को सब जानते हैं कि मलेरिया से डेथ हो रही है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज से डेथ हो रही है, या HIV एड्स से डेथ हो रही है। सो अगर आप उस स्केल को समझते हैं तो समझिए कि स्नेक बाइट का मॉर्टलिटी, जो मरने का डेथ है, वो रेट है, वो करीब करीब 1/5 मलेरिया से वर्ल्ड वाइड में, और हाफ ऑफ इन इंडिया से जितने लोग एड्स से मरते हैं। मंजित ने पहले ही बात की, स्नेक बाइट एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए वे कि अगर किसी देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उस कंट्री में स्नेक बाइट कम होगी। एक इंडिकेटर है, क्योंकि अफेक्टेड पीपल ये ऑक्यूपेशनल डिसीज है और नेग्लेक्टेड डिसीज है। सो इसमें क्योंकि स्नेक और जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, दोनों हैबिटेट शेयर करते हैं, उसी गांव में, उसी जगह में, या माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके साथ में। सो दे शेयर द हैबिटेट, एंड इस शेयरिंग में ये एक्सीडेंट्स अक्सर हो जाते हैं। और एक बार वो एक्सीडेंट हो जाते हैं, केवल एक्सीडेंट होना केवल काफ़ी नहीं है, जब वो एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद के कंसिक्वेंसेस जो और फैक्टर्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं हो पाना, उनकी जानकारी नहीं होना, वो सारा कंट्रीब्यूट करता है और उसको एक डिजास्टर्स आउटकम देता है। सो केवल स्नेक का और उसका वेनम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके बाद के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सो जिस तरह से कोई एक्सीडेंट में केवल एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स उसके साथ होते हैं। सर 2 हिट 3 हिट होता है तभी जाके एक एक्सीडेंट होता है। इवन इन द वर्स्ट ट्रैफिक, इवन इन पीपल यहाँ पे जितने स्पीड में जाते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें फैक्टर्स होते हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए मैं एक्सीडेंट वर्ड का यूज कर रहा हूँ स्नेक बाइट के लिए। और बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, मेरे को पता है कि बच्चे हमेशा हर डिसीज से ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी बॉडी साइज, उनका फिजियोलॉजी बॉडी की ऐसी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या। सो आप देखेंगे स्नेक बाइट का जो जहर है और स्नेक बाइट के जो चांसेस हैं वो मल्टीफैक्टोरियल है। वो एक्सीडेंट्स हैं, वो नेग्लेक्टेड, WHO ने एक समय में डिक्लेयर किया था उसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसके पहले और बाद में काफी इम्पोर्टेंट है। मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसके। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, हैबिटेट जैसे मैंने कहा वो है। वेनोमिक्स, द स्नेक वेनम, ये एक वेरी पोटेंट, वेरी इवोल्यूशनरी, वेरी सोफिस्टिकेटेड एक तरह का एंजाइम है। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ स्नेक का वेनम इतना टॉक्सिक है कि वो एक फुल साइज ह्यूमन को भी मार सकता है। और हेल्थ केयर एक्सेस इसका भी मुद्दा है। सो जिस तरह देखेंगे स्नेक बाइट की अगर बात करेंगे तो ये सारी बातें उसके आसपास घूमती हैं। आगे बढ़ी, आगे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्लाइड। मूव हो रही क्या? जैसे इससे पहले वाली, हाँ, जैसे हमने देखा कि स्नेक इन इन मैनलैंड इंडिया की बात कर रहा हूँ,
जहाँ पे जो बिग 4 है, इससे पहले वाली स्लाइड, जो बिग 4 है वो ज़्यादातर स्नेक बाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें 2 तरह के एलिपिड स्नेक है जो न्यूरोटॉक्सिक कहलाते हैं। पिछला वाला जो कोबरा और क्रैथ वो एक तरह के हैं, दिखने में नहीं, लेकिन उनके जहर जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, और वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है न्यूरोटॉक्सिक वेनम के लिए। और 2 तरह के वाइपर है, रसेल वाइपर विद जो सर्कल्स है उसके उसमें, और छोटा सा स्नेक सॉ स्केल वाइपर। राजस्थान में पाया जाने वाला सॉ स्केल वाइपर थोड़े बड़े साइज का होता है, सो वो दूसरी स्पीसीज है। सो मेनली यही 4 जो है वो मेजॉरिटी ऑफ 90% ऑफ स्नेक बाइट डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके अलावा भी जहरीले सांप है, लेकिन या तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा किंग कोबरा के बारे में, वो लेकिन जंगलों में रहता है, उसकी बाइट्स बहुत बहुत रेयर है। जैसे अनेक तरह के पिट वाइपर्स होते हैं, और वो भी टिश्यू डैमेज कर सकते हैं, वो हार्म कर सकते हैं, लेकिन उनका वेनम भी हार्म कर सकता है, लेकिन वो सब उनकी बाइट्स रेयर होती है, क्योंकि इनका हैबिटेट शेयर नहीं होता। लेकिन ये 4 स्नेक जो है, 4 स्पीसीज ऑफ स्नेक, ये हमारे साथ हैबिटेट शेयर करते हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो रसेल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, रसेल वाइपर और कोबरा, दे मेनली लाइक ह्यूमन हैबिटेट, बिकॉज वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है बहुत सारे रैट्स की और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जिनको वो खा सकें। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो क्या क्या होता है स्नेक बाइट होने के बाद में? स्लाइड हाँ ठीक। या सो मेडिकल मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें, तो मैं बात करूँगा फर्स्ट एड की। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एड, क्योंकि उस समय में हम बचा सकते हैं लोगों को फर्स्ट एड से ही। बहुत सारा डिफरेंस, जिस तरह से एक एक्सीडेंट में फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस होता है, मेडिकल इसमें भी, स्नेक बाइट में भी फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस है। मैं डिटेल में बात करूँगा उसके बारे में। जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर में जितना जल्दी उसका रीअसेसमेंट हो सके अगर ये वेनमस बाइट है तो, और उसके बाद क्लिनिकल असेसमेंट किया जाए, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जो लगते हैं वो किए जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो एंटीवेनम सही तरीके से दिया जाए वो, और उसके बाद उनका ऑब्जर्वेशन जो है उसका रिस्पॉन्स देखा जाए, और उसके बाद फाइनल थिंग की ट्रीटमेंट, अगर कुछ वुंड है तो उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, अगर बड़ा अल्सर है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और इन सब से निकलने के बाद रिहेबिलिटेशन, एंड देन प्रॉब्लम्स जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे तैयार किया जाए, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट एड एक्चुअली, अगर आप स्नेक बाइट का फर्स्ट एड देखें तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें ये है, चूंकि इतने सारे मिथ्स हैं कि क्या चीज़ें नहीं करनी है कंपेयर टू क्या चीज़ करनी है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो पहली बात तो कि लोग पेशेंट रहें, काम रहें, रीएश्योर करना है उनको, और वो लिम्ब जिसमें अफेक्ट हुआ है, जिस पार्ट ऑफ बॉडी में, उसको इमोबिलाइज करना है, और जितने जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाके रहना है। और वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जो बहुत कॉमनली कही जाती है कि आप चीरा लगाइए, आप खून निकालिए वहाँ से, वहाँ पे कोई पत्थर लगाइए, उसको टाइट बांध दीजिए कि वो ये ना हो पाए, उसको बड़ा कर दीजिए वुंड को, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जहर निकल जाए, उसमें कोई हर्बल डाल दीजिए। ये सारे उपाय जो हैं, ये सिर्फ डिले करेंगे अगर किसी व्यक्ति को वेनमस स्नेक ने बाइट किया है। सो क्यों नहीं करना है ये चीज़ें? क्योंकि अगर आप उसमें कट करने की कोशिश करेंगे, इट कैन गेट इन्फेक्शन, और उसमें और सेप्सिस हो सकता है। अगर आप उससे निकालना चाहते हैं खून सक करके, जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है, तो वो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अ, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत इवॉल्व्ड, स्नेक वेनम जो है बहुत इवॉल्व्ड ऑर्गन है, एंजाइम है, सब्सटेंस है। सो जैसे ये और द वे इंजेक्ट किया जाता है, ये उसी तरह से होता है जैसे कोई इंजेक्शन दिया जाए। सो जिस तरह से इंजेक्शन देने के बाद आप उसको वापस निकाल नहीं सकते बॉडी से, उसी तरह से आप सक करके इसको बाहर निकाल नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक ऑब्वियसली कोई कोई चांस नहीं है कि इस पे कोई इफेक्ट है। केमिकल केमिकल एप्लीकेशन, वो सब उस जगह को ज़्यादा इंज्योर करेंगे और उसको हेल्प नहीं करेंगे। ब्लैक स्टोन और ऐसा कोई स्टोन है ये हमें नहीं पता, और ऐसा लगता नहीं कि कोई स्टोन इसमें हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा टाइट बांधना लगता बहुत लॉजिकल है कि अगर टाइट बांध दी जाए जहर फैलेगा नहीं, लेकिन उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आगे की स्लाइड्स में मैं ये बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। या
सो क्यों नहीं बांधना चाहिए एक आर्टेरियल में से एक टाइट बिल्कुल टाइट कि खून आ भी ना सके जा भी ना सके, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो खून नहीं जाने के कारण वो जगह पूरी तरह से ही नष्ट हो सकती है, क्योंकि उससे अगर कोई लिम्ब को खून नहीं जाता है बहुत समय से तो वो पूरा ही तरह खराब हो सकता है। बहुत पेनफुल होता है ऐसा करना, और अगर बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया गया तो उसको उस लिम्ब को बचा पाना मुश्किल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा असर इस बात का होगा कि उस जगह में खून नहीं पहुँचा, और ऐसा होने के बाद अगर आपने इसे बांध दिया है, सो अगर आपको हॉस्पिटल में सडनली इसको ओपन कर दिया गया तो ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेनम जो है वो सडनली गश करके जा सकता है, और वो मेजर इफेक्ट उसे हो सकता है। और उस जगह में और भी कुछ ऐसे प्रोकोगुलेंट होते हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ सकती है अगर एक जगह पे कॉन्संट्रेट किया जाए वेनम को। सो बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जिसलिए बोला जाता है कि कभी टाइट न बांधा जाए। नेक्स्ट स्लाइड। और इसके लिटरेचर अनगिनत लिटरेचर इसके बारे में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो आइडियली इस तरह से एक सिंपल तरीके से, जैसे आपको कोई फ्रैक्चर आर्म होता है जिसको आप लाइटली बांध करके सपोर्ट देके करते हैं कि वो मूव मत करे, जस्ट इस तरह से उस हिस्से को अगर अवेलेबल हो, इसमें से कुछ पट्टियां हो या कपड़ा हो या जो भी आप वहां पे बना सके, उस तरह से उसको बांध के मिनिमल पर्सन को मोस्टली अपराइट रख के उसका हार्ट का लेवल अबो द बिटन पार्ट के साथ में करके अगर आप उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले सकें विदाउट मेकिंग हिम मूव मच, जो ज़्यादा मूवमेंट से सर्कुलेशन बढ़ सकता है और वेनम जो रैपिडली दूसरे हिस्से में बॉडी के पहुंच सकता है। सो ये चीज़ें कर सकते हैं और वही रिकमेंडेड है। नेक्स्ट। या आपको पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, आप दोबारा बाइट ले सकते हैं, उसको मारने की कोशिश नहीं करना है, उस हिस्से में अगेन आपको हो सकता है। मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि लोग लोगों को किसी एक सांप ने काटा है और कोई दूसरा सांप मार के ले आते हैं और वो बोलते हैं कि इस सांप ने काटा है, जबकि वो गलत हो सकता है। एक ही जगह में 2 सांप हो सकते हैं, जो आपकी पकड़ में आ गया आपने मार दिया। अ, और कई बार डेड स्नेक भी अगर आप पकड़ रहे हैं, इट्स पॉसिबल कि वो उनके स्पाज़म होने से वो डेड स्नेक से भी बाइट हो सकता है। ये मैनेजमेंट थिंग मेनली फॉर द हॉस्पिटल्स है, इसके गाइडलाइंस इंप्रूव हुए हैं काफ़ी आजकल। बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में एम्स के अपने टॉक्सिकोलॉजी सेंटर्स है, टॉक्सिकोलॉजिकल यूनिट्स है, वो उन पे उनके फ़ोन नंबर्स हैं, हेल्पलाइन्स हैं, फिर हॉस्पिटल्स उनको कॉन्टैक्ट करके उनके साथ जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। और किस तरह से करना है ये मेनली लिखा है, सो ये जनरल डिस्कशन के लिए मैं इस को अभी डिटेल में नहीं बात करूँगा। नेक्स्ट। सो ये भी थोड़ा मेडिकल डिस्कशन है, इसमें यही बात है कि न्यूरोटॉक्सिक जो होता है वो मेनली कोबरा और करेज से होता है। हेमेटोटॉक्सिक जो होता है वो वाइपर और दूसरे सॉ स्केल वाइपर के कारण होता है। साउथ इंडिया में रसेल वाइपर जो है वो दोनों इफेक्ट दे सकता है, ये मेनली है, और ये मदद करता है डॉक्टर्स को पहचानने में कि किस तरह की बाइट हुई है। सो सिम्टम्स को देखा जाता है बिफोर एंटीवेनम को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी उसी तरह का टेबल है जिसमें मैंने यही बात कही है। नेक्स्ट स्लाइड। और क्या-क्या हो सकते हैं इफ़ेक्ट? सो दोनों शरीर में बहुत सारे सिम्पटम्स आ सकते हैं अगर मेजर वेनेमस बाइट है तो, और लोकल सिम्पटम्स हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, जल्दी बढ़ने वाली स्वेलिंग हो सकती है। डॉक्टर्स को टाइम चाहिए होता है इसे ऑब्जर्व करने के लिए, तो कई बार ऐसे हो सकता है कि आप चले जाएँ किसी हॉस्पिटल में और वो बोले कि आप एंटीवेनम क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हो गया है, बाइट हो गया है, स्नेक बाइट हो गया है। तो पहले तो हमको वहाँ डिसाइड करना पड़ता है कि एंड ये वेनमस स्नेक का बाइट था कि नहीं, फिर उसके बाद जो इफेक्ट आते हैं उस हिसाब से एंटीवेनम दिया जाता है। नेक्स्ट। हाय हाय। सीवियरिटी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, पेशेंट्स, स्नेक, उनके बाइट, साइज ऑफ स्नेक, उसकी एज, सेंसिटिविटी ऑफ वेनम, स्नेक की स्पीसीज, स्नेक का एज एंड बाइट्स, उनके लोकेशन, कहाँ पे, किस पार्ट ऑफ बॉडी, क्लोजर टू हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट, and the numbers of bites, sometimes multiple bites are more dangerous. Next. ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो लिम्स में आ सकते हैं, ये मोस्टली मेडिकल डिस्कशन है, फिर कभी कर सकते हैं। नेक्स्ट। एक सेलुलाइटिस जैसी कंडीशन होती है जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, एक तरह से जैसे इन्फेक्शन की तरह दिखाई देता है, और ये सब मैनेज करना पड़ता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट। या ये सब मैंने ट्रीटमेंट की बात रखी है।
अब डिटेल में अगर बात करना चाहेंगे करेंगे। नेक्स्ट, ये स्लाइड के नेक्स्ट। कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, उस समय में सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है और उसकी इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, अल्सर्स और दूसरे प्रॉब्लम्स जो है। मेरी सेल में थोड़ी बैटरी खत्म हो रही है, मैं ट्राई टू गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट, सो एंटी वेनम के बारे में बताना चाहूँगा। ये वेनम से बनाया जाता है, स्नेक के वेनम से, जिसको जिस तरह से किसी को वैक्सीनेशन होता है उसी तरह से हॉर्स और दूसरे कैटल्स को वैक्सीनेट किया जाता है और उनकी बॉडी से निकाल के बनता है। इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि कैसा मैन्युफैक्चर हुआ है, किस तरह से वो आइसोलेट किया गया है, दिस सब, और उसकी एफिकेसी पे भी क्वेश्चंस आते रहे। ये 100 साल पुराना, मोर देन 100 ईयर्स इसको टेक्नोलॉजी है ये, जो अभी तक बहुत सक्सेसफुल रही है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सेसिबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी और स्टोरेज, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं जब अगर उनको आपको देना है लोगों को और अवेलेबल कराना है। जैसे कि एक बात होती है कि अगर आप किसी CSC या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में है, सो दे शुड, उनके पास ये होना चाहिए कि कब इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है। ऐसा नहीं कि हर महीने 10 वायल आप रखें। मानसून के समय में आपको ज़्यादा वायल रखनी चाहिए क्योंकि बाइट ज़्यादा होती है उस समय। सो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। बहुत ही एलर्जिक है क्योंकि ये एनिमल से दूसरे एनिमल से तैयार होता है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रखना पड़ता है। उनके क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए लगातार बातें चल रही है, रिसर्च हो रहे हैं। और अल्टरनेटिव सम टाइम अगर आपके पास वेनम नहीं है, एंटी वेनम नहीं है, तो आप बाकी सपोर्टिव मेजर्स लेके व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, अगर वो सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक बाइट है तो। नेक्स्ट स्लाइड। सो चैलेंजेस, हर फैक्टर में जितनी बातें की है सब में कुछ कुछ चैलेंजेस हैं आपके पास। मेरा सेल खत्म हो जाएगा शायद, मैं थोड़ी देर में फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सो हर फैक्टर जो ह्यूमन स्नेक कन्फ्लिक्ट की बात है, वहां से लेके आखिरी हिस्से तक जहां रिहेबिलिटेशन है, हम लोगों ने कुछ स्टडीज की है कि हाउ ए स्नेक बाइट सर्वाइवर्स मूव थ्रू आउट देयर जर्नी, एंड उनका क्या क्या सफ़र करना पड़ता है। लोग पॉवर्टी में चले जाते हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट ऐसी लंबा चलता है। सो एंटी वेनम के इश्यूज हैं, ये सब बातें हम डिस्कस कर सकते हैं एज द क्वेश्चन कम। नेक्स्ट, ये बातें डिस्कस हुई कि कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं स्नेक बाइट से। नेक्स्ट, सो हम हर व्यक्ति अपने हिस्से में कुछ ना कुछ काम कर सकता है। मैंने अपने हिस्से में कुछ काम किया कि कैसे सब फैक्टर्स को ट्राई टू कैच एंड फाइंड आउट कि क्या सॉल्यूशन है, और इस पे कंटिन्यू काम करके मोर एंड मोर वॉलंटियर्स को लेके इस बातों को दूसरों को बता के हम काफी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज लास्ट स्लाइड। थैंक यू। मैं अपना चार्जर ढूंढता हूँ जरा, then we can start the session. Thank you so much, Dr. Harshi. Thank you so much. That was a really wonderful session. So much information. Professor, so anyway, I think we'll move on to the open discussion part, and I would like to also invite Dr. Manjeet. And also we have hands raised here. There were some hands which is raised before too. So let's start with Sanju Singh. Sir, would you like to raise the question? Dr. Manjeet, if you wanted to add something at the end. हाँ, सो आपने दोनों चीजें देखी कि मैंने जब अपनी बात रखी तो हम अवेयरनेस और सांप की इंफॉर्मेशन को लेकर कम्युनिटी के साथ कोई जिस्ट हमारा पर्सपेक्टिव कैसे वो हो, शायद बहुत कुछ वो सॉल्यूशन करता है। और एक टेक्निकल बातचीत जो डॉक्टर हर्ष ने रखी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रीटमेंट इतना रोल प्ले कर रहा है, उसके बावजूद आपने देखा कि हर्ष जो है वो भी अवेयरनेस में लगे हुए हैं, उन्होंने क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी है। और हम अगर हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। हम लोगों तक एक्सेसिबल होंगे तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो डेथ्स कम होंगे। तो ये ऐसा एरिया है जो इसलिए पेनफुल है, सांप जो है वो बदनाम हो रहा है। तो मैं उस सांप की जो एग्जिस्टेंस है और इम्पोर्टेंस है वो भी उस पर भी क्वेश्चन लग रहा है।
जबकि ये हमारी सावधानियों से और टाइमली ट्रीटमेंट से ये चीजें जो है वो बचाई जा सकती हैं। तो ये 2 एंगल को आपके सामने देने का था। बात थी कि अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, एनवायरमेंट का रिलेशन, ये एक इम्पोर्टेंट रोल है। और सेकंड है, अगर सिचुएशन बिगड़ रही है तो ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या काम करना है। तो इससे लेकर कोई और क्वेश्चन है? संजू जी, आपका हाथ दिख रहा है रेस किया हुआ, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं। So meanwhile, there is a question in the chat box. So the Jugal Kishore Ranajit sir has asked, people use some herbs as first Hello? aid. Is it Excuse me? appropriate? हाँ, Hello? बताइए। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए संजीव कुमार जी। हाँ, एक्चुअली मैम, अगर थोड़ी हिंदी में बात हो जाए तो हमें भी थोड़ी समझ में आ जाएगी। हम हिंदी में ही बोल रहे थे। नहीं नहीं, वो मैम जो थी दूसरी वाली वो अच्छा। इंग्लिश में बोल। अच्छा, ठीक है। नहीं, तो वो मैम बोल रही है कि आप लोग को जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, हर्ब्स के उपयोग के बारे में जुगल किशोर जी, बिल्कुल भी हर्ब्स की जरूरत, हर्ब्स वाला हर्ष ने भी बताया कि उस पे आप ना जाए। सांप काटे तो आपको हॉस्पिटल ही जाना है। हाँ, अगर आप इस बात से श्योर हैं कि वो जहरीला सांप है, अगर नहीं श्योर है तो भी, अगर डाउट है तो भी जाना चाहिए, मुझे लगता है हर्ष बताएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ हर्ब्स सक्सेसफुल हो, क्योंकि हमारे बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज हैं जो इस तरह से यूज करती हैं। जैसे साउथ में इरुलाज हैं, इरुलाज आर वेरी सक्सेसफुल इन होल्डिंग स्नेक, एंड दे आर द ओनली सप्लायर ऑफ स्नेक वेनम फॉर एंटी वेनम प्रिपरेशन। सो ये सब इरुला कुछ हर्ब्स यूज करते हैं, कुछ और आदिवासी कम्युनिटी यूज करती हैं, लेकिन कोई ऐसी सिस्टमिक स्टडी नहीं हुई है इनके बारे में जो आपको कह सके कि ये हर्ब ही अच्छी है और यही हब परफेक्ट यूज होगी। और किस तरह से उसका यूज हो, ये किसी के कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज कई कई जगह पे हो सकता है, वो उनको हमको ढूंढना पड़ेगा वापस से शायद। लेकिन इस वक्त पे हम बेहतर यही होगा कि समय वेस्ट ना करें उस पर और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में जाएं और वो बताएंगे। और कुछ क्वैक्स जो होते हैं वो ये दावा कर सकते हैं कि आप हर्ब लगा दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्नेक नॉन वेनमस होते हैं। सो वो जहरीले नहीं होते हैं और हर्ब लगा के वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमने आपका जहरीला जहर निकाल दिया है उससे। सो और कई बार ऐसा होता है कि जहरीले सांप भी काटते समय अपना जहर नहीं छोड़ते हैं, जिसको कहते हैं ड्राई बाइट। सो अगर ड्राई बाइट हुआ है तो अगेन एक क्वैक कैन बी सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं कि हाँ हमने आपका इलाज कर दिया, आपको कोबरा ने काटा था लेकिन हमने इलाज कर दिया। कोबरा भी अपना जहर वेस्ट नहीं करना चाहता आदमी के ऊपर, वो अपना बेहतर करेगा अपने शिकार के ऊपर। सो ऐसे कंडीशन के कारण ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है। सवाल आया, दिल्ली के अंदर किसी एरिया में कोई सांप नहीं है तो किस एजेंसी को कांटेक्ट करना चाहिए, किस नंबर पे? तो हमें शायद बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो सांपों पे काम कर रहे हैं, मे बी कि हम उसको फाइंड आउट करके बता सकते हैं। इज देयर एनी टोल फ्री नंबर? तो ये एग्जैक्टली सिर्फ सांप के लिए नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसे 112 को अगर हम कॉल करते हैं तो उनके पास ये नंबर है। ये बात मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि आप सभी लोग अपने राज्य में, अपने स्टेट में अगर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, आईएजी है, स्पेयर इंडिया, ये सपोर्ट करे कि हेल्थ का जो हेल्पलाइन है और पुलिस का हेल्पलाइन है, इन हेल्पलाइंस में कांटेक्ट नंबर रेस्क्यूअर्स के और जानकारियों के जरूर रहें। ये बहुत यूजफुल होगा। आप सभी लोग जिस बात को बोल रहे हैं कि कोई टोल फ्री नंबर है, तो इसका डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर नहीं, लेकिन नंबर है मदद के लिए, उनको इसमें कवर किया सकता है। और शायद विशाल जो है, एसपीआर इंडिया है, इस तरह के इनिशिएशन में बहुत या सपोर्ट। कुछ ग्रुप हैं जो ये इस तरह के ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सब जगह के स्नेक रेस्क्यूअर्स और डॉक्टर्स का नाम आए। सो कुछ अवेलेबल है नेट्स में, कुछ और ऐप्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन एक कंबाइंड एफर्ट अभी नहीं हो पाया है पूरी तरह से। हेलो। हाँ, एक सवाल आया है, कुछ लोग कहते हैं कि एंटी वेनम बंद हो गया है, मल्टी वेनम लगता है, इज इट करेक्ट? हर्ष अगर बताएं। जो हमारे यहाँ वेनम यूज, एंटी वेनम यूज होता है वो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम कहलाता है।
जो इन चारों स्नेक का एक साथ यूज हो रहा है, और यही यूज हो रहा है बहुत ही समय से। हम मोनोवेलेंट वेनम एंटी वेनम अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ये कभी भी अवेलेबल नहीं था। उसके लिए तैयारियां चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में मोनोवेलेंट, क्योंकि उनके पास ऐसे तरीके अवेलेबल हैं जिससे वो पता कर लेते हैं कि कौन सा स्नेक ने काटा हुआ है, तभी वो मोनोवेलेंट वैक्सीन देते हैं। और ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है हमारे देश के लिए, इसलिए हमारे यहाँ पॉलीवेलेंट वैक्सीन ही दिया जाता है। सर एक सवाल मेरा था। हेलो। हाँ हाँ आवाज पूछिए। हाँ हाँ। जी। जैसे सुनने में आता है कि अगर जहरीले सांप ने नहीं काटा हो और उसको एंटी वेनम दे दिया जाए तो क्या उसके साइड इफेक्ट कुछ होते हैं क्या? बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो सिर्फ एक खुजली खुजली होने से लेके लाइफ थ्रेटनिंग, जान जाने तक का एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। सो ये इसलिए नहीं होते क्योंकि वो नॉट जहरीले नहीं सांप के कारण काटा है, ये कभी भी हो सकते हैं। ये अगर जहरीले सांप ने काटा है तो भी हो सकते हैं। तो इसलिए, और दूसरी चीज की ये सब जगह इतना अवेलेबल नहीं है एंटीवेनम, सो उसका यूज बहुत जुडिशियसली करना चाहिए, उसका यूज जरूरत पड़ने पे ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। सो डॉक्टर्स को डिसाइड करना चाहिए कि कैसा और कब ही इसका यूज किया जाए, और सही तरीके से यूज किया जाए, और उतनी ही क्वांटिटी में यूज किया जाए जितनी इसकी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। थैंक यू सर। हमारे साथ सूरज जुड़े हुए हैं नोवा नेचर से। अगर सूरज आप ये बता सकते कि अलग अलग राज्यों में स्नैक रेस्क्यू या स्नैक सपोर्ट को लेकर कोई डायरेक्टरी बनी हुई है या कोई कांटेक्ट है क्या? क्वेश्चन आ रहा है। Anjan Mitra, sir, your hand. गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ बताओ सूरज। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। और हरजीत सर और मैम, आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। और आपके सवाल को लेके मैम, ये सवाल कई लोग मुझसे भी पूछते हैं। तो केरला जैसे कुछ स्टेट में इन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की है, लेकिन बाकी स्टेट्स में एज सच इसके लिए कोई सेंट्रल हेल्पलाइन या हॉटलाइन नंबर नहीं है। तो जैसा आपने भी अभी सजेस्ट किया था कि अगर किसी एरिया में कोई स्नेक रेस्क्यूअर है तो डेफिनेटली वहाँ के इमरजेंसी सर्विस वालों के साथ वो रजिस्टर्ड होता है या उनकी जानकारी में होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जब कुछ जिलों में जहाँ पे स्नेक रेस्क्यूअर अवेलेबल नहीं है, तो हम वहाँ पे रेस्क्यूअर्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप 112 में कॉल करिए, और 112 वाले के इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई लोकल रेस्क्यूअर रहता है जिनको वो तत्काल भेजते हैं। हाँ यही जानकारी दी थी। तो आपने राहुल यादव जी आपने लिखा है कोई ऐसा ग्रुप जिनसे हम लोग ऐड किया जा सके। तो आप जिन जिलों में रहते हैं, जिन राज्यों में रहते हैं, हर जगह स्नैक रेस्क्यूअर ग्रुप है। और छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें सूरज भी है, हम लोग भी हैं। तो हम अपने एक दूसरे को हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम अनएड्रेस्ड बहुत कम रहता है। जैसे ही कोई डेथ का कोई साइट का मैसेज आता है, हम बिल्कुल लाइन अप करते हैं एंड तक और फॉलो अप करते हैं। और डेथ्स बचाने में भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है। खासकर जो मुखिया होते हैं पंचायतों के, उन तक ये बात पहुंचना भी जरूरी है। अभी यूनिसेफ ने एक स्कूल का एक बहुत अच्छा गाइडलाइन बनाया है इसकी अवेयरनेस को। ऐसा कुछ गाइडलाइन हर जगह चिपका रहे, बड़ा लिखा रहे। राजस्थान में भी है, मैंने सुना है राजस्थान में कोई काम कर रहे हैं। अभी यहाँ डला हुआ है समर रे है जो वेस्ट बंगाल में है। तो आप अगर इस तरह सोचना और ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको लोग मिलेंगे। रेस्क्यूअर्स बढ़ रहे हैं, रेस्क्यूअर से ज्यादा कंजर्वेशनिस्ट बढ़ रहे हैं। मैं एक लेवल और कहूंगी, कोएग्जिस्टेंस सिखाने वाले लोग बढ़ रहे हैं कि आप और हम जैसा कि हम हैबिटेट शेयर कर रहे हैं, तो हम क्यों ना साथ मिलकर रहें। क्या सावधानियां बढ़ते हैं, बस उसको ध्यान रखते हैं। हेलो सूरज। हाँ मैम। हेलो हाँ मैम। बताइए। हाँ हाँ मैम बोलिए। सवाल। हाँ हाँ हेलो। अंजन जी। हाँ सूरज एक मिनट। सूरज वो
एकदम जो आपने एक बात कही है बाइट डेथ वाली की पैनिक होने की वजह से डेथ्स भी होती हैं वो नंबर्स के साथ। सूरज आप लास्ट में इसको क्लोज करना। अंजन जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ Hello ठीक है ma'am, मैम। good evening. First of all, I like to thank you all for organizing such a nice seminar. Being a first aider of St. John Ambulance India, हाँ I like to gather some PPT from your site Yeah. so that we may teach the rural pupil in such a way that they may inculcate the habit of Yeah. snake bite prevention as well as first aid also. And another point is to organizers, please make a easier login process so that we may get into the seminar in easy way. I have to waste 30 minutes before entering this seminar. Thanks for you. Sure. And I think through Spare India we can share the PPTs and we can share the informations also. और एक आया है नॉन वेनेबल स्नेक के बाइट से भी डेथ होता है क्या? तो मे बी कि डर के कारण होता है। तैबा जरीन जी ने पूछा है, बताया है। एक ने रूमा देवी ने कहा है कुछ लोग कहते हैं कि स्नेक को टच हो जाने से, सामने पड़ जाने से उसका असर पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी असर नहीं पड़ता। कल ही मैं और मेरे बड़े ब्रदर हैं जगपाल, वो भी जुड़े हुए हैं इसमें, तो हम लोग एक घर गए थे, वो बोल रहे थे आप सांप को ले जाइए, तो साथ में कुत्ते भी खड़े थे, कुछ गाय भी खड़ी थी। हमने कहा जैसे आप इन्हें देख सांप को देखना सीख जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं सांप, जस्ट लाइक, लेकिन केयरफुल रहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। और कोई घटना होने पे टाइमली हॉस्पिटल पहुंचिए, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे आप थोड़ा सा प्रभाव डालिए, उस तरह का प्रभाव कि वो उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, ना कि दबाव डालिए। तो वो एक तरीका है, तो उससे कुछ नहीं होता। भारत में कितने प्रकार के अभी बताया, मेजॉरिटी रूप से 4 टाइप के हैं। कोबरास की वैरायटी है, करैत की वैरायटी और करैत की और वाइपर की वैरायटी है, और उसी के अराउंड बहुत सारे सांप हैं और उसी के कई कनेक्शंस हैं, यानी उसी स्पीसीज से रिलेटेड सांप हैं। अधिकांश जंगलों में जो होते हैं उनके बाइट के केसेस नहीं है, हर्ष ने भी बताया। और ये क्वेश्चन है, जहरीला सांप काटने में कितने देर में शरीर के अंदर फैल जाता है जहर? हर्ष अगर आप इसको बताएं। सो ये डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे, जैसे कि सांप कितना फ्यूरियस समय है, उसकी कितनी क्वांटिटी में स्नेक उसने दिया, उसकी एज क्या थी। जैसे मैंने एक स्लाइड में बताया था कि व्यक्ति की एज कितनी है, वो कितना पैनिक में है, उसका हार्ट रेट कितना है। तो बहुत सारी बॉटम फैक्ट वो करता है, इसलिए कोई स्टैंडर्ड एक नंबर या टाइम बताना मुश्किल है। डिफरेंट पीपल है, दूसरे लोगों में दूसरी तरह से प्रवाह उसका हो सकता है। इसीलिए जब भी स्नेक बाइट होता है तो उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है, कम से कम 12 से 24 घंटे अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाए तो। तो कुछ आदित्य ने पूछा है कि अगर सांप मिले सड़क पे तो क्या करना चाहिए। सो आइडियली सेफली अगर आप उसको सड़क के किनारे डाल सकते हैं तो ठीक है। कई बार सांप खुली जगह में आने के बाद ऐसी एक्टिंग करता है, ऐसी कि वो एक लकड़ी की तरह है। सो मैंने कई बार देखा है कि सांप इस तरह से बैठ जाता है जैसे कि वो एक लकड़ी है, ताकि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। सो अगर आप पहचान सकते हैं तो विद सेफ्टी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो जस्ट निकल जाइए वहां से। लेकिन अगर आप सेफली उसको हटा सकते हैं तो वहां से हटाइए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दूर रहें और या किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो ये काम कर सकता है। एक क्वेश्चन आया है, can you please share again the basic first aid process till the time patient is the hospital? It was already discussed, but Harsh, agar you can repeat it. एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है कि वो पाउडर बेस है क्या। तो दोनों तरह से होते हैं एंटी वेनम। वो लायोफिलाइज्ड होता है जो पाउडर, जिसको आप रिकस्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर से बना के इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में वायल होता है। और दोनों का ही अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे पाउडर फॉर्म में है तो वो ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं,
और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो तुरंत दिया जा सकता है, और उसका स्टोरेज लाइफ, बट उसकी स्टोरेज लाइफ कम होती है। सो दोनों फॉर्म अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर्स। 3-4 मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, विंस वाले हैं, भारत सीरम वाले हैं, हाफकिंस इंस्टीट्यूट के अपने हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और इस तरह से अभी काफ़ी कुछ है जो ये प्रोड्यूस करते हैं। Thank you so much, Doctor. Is there any more pressing questions? We have already crossed 15 minutes from our schedule. Thank you. Is there any other questions that we? I think we should close and All right, yes. So, yeah, so I think we can close now. एक So minute, just a minute. I think Suraj wants to some important thing. Please, Suraj can. हाँ मैम, share. एक बहुत जरूरी ये इतने अच्छे फॉर्म पे इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है, तो एक बहुत अहम हिस्सा मैं जोड़ना चाह रहा था। हेलो, एम आई ऑडिबल? yes, Yeah, you yeah. are. हरजीत सर ने अपने एक स्लाइड पे एक बेहद इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को रखा था कि जो लोग स्नेक बाइट सफरर्स होते हैं वो यूजुअली काफी वीकर या लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं। तो कई लोग ये नहीं मालूम है कि स्नेक बाइट में डेथ होने के बाद भी आप कंपेंसेशन के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, लेकिन कंपेंसेशन स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं देता। ये कंपेंसेशन आपको मिलता है कलेक्टर के तरफ से, और आई थिंक इसकी वैल्यू नियर अबाउट 2 लाख तक का है। हाँ, तो, बिल्कुल एक्सीडेंट कंपनसेशन के दायरे में आता है वो। थैंक यू सूरज, इसको With भी pleasure, हम ma'am. हाँ, यस, थैंक यू। ठीक, Thank you so much, Okay, ma'am. sir. So, Excuse me, ma'am. First of all, I'd like to thank for this informative session about the awareness of snake. I have a question. How normal people can identify whether the snake is poisonous or not? हम लोग भी नॉर्मली लोग हैं जरीन, हम स्पेशल नहीं है। हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा, और अभी ऑलमोस्ट हमारे आसपास कॉलोनीज के लोग पहचानते हैं कि ये रेड स्नेक है। तो ये है, ये हमको ये रोल लेना पड़ेगा, किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, किसी है कुछ छोटे पैम्पलेट बनाने होंगे फोटोज के साथ। तो सांप को पहचानना बहुत कम है। यहाँ पे पूरे बर्ड्स हैं, 1200 बर्ड्स हैं, एक राज्य में 400 हैं, लेकिन सांप सिर्फ 13 to 15 टाइप्स के सांप आसपास मिलते हैं। तो इट्स वेरी इजी कि उनको पहचान जाए, और ये बहुत सिंपल सा शायद काम हो सकता है। और ये क्रिएट करना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना की, और स्कूल्स इज द बेस्ट वे, मतलब प्लेटफॉर्म है कि स्कूल्स में इन सांपों को लेकर। और 13 सांप यहाँ छत्तीसगढ़ में, मुझे हंसी आती है कि हम सिर्फ 13 या 20 सांप को देखना, तो इट्स वेरी इजी। उससे ज्यादा तो हम और दूसरी बात, अगर आप से सांप से बचाव चाहते हैं और उससे दूर रहना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जहरीला है कि नहीं है, क्योंकि सांप भी यही चाहता है, वो दूर रहना चाहता है आपसे। सो अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, इकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, और सिर्फ आप सेफ्टी के लिए चाहते हैं, तो ये कोई जरूरत नहीं है आपको पहचानने की कि ये जहरीला है कि नहीं जहरीला है। आप एक डिस्टेंस बना के रखिए, और जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं वो सारे रखिए, उतना ही काफ़ी है। Thank you so much for that information, sir. So somebody, as somebody have mentioned in the chat box, curiosity is the answer for question. So I hope we all stay curious and learn more about it. So सेशन से एक छोटा सा क्विज है जिसे आप टाइप कर सकता है। इस बीच मैं वोट ऑफ थैंक्स लिए आगे बढ़ना चाहूँगा। So once again, on behalf of Save India and UNICEF India, I extend my heartfelt gratitude to all of you for gracing this with your presence and active participation. Your valuable contribution have enriched a lot into our knowledge and discussions.
And I would like to extend a special vote of thanks to our esteemed speakers, Dr. Manjeet and Dr. Harjeet, for sharing their profound insight and expertise with us. Your dedication to rural development and environment protection, especially snake conservation, has been truly inspiring. You have actually opened a new way to look at snakes. We used to see snakes as something to be afraid of, but you have opened up a new perspective, actually building a curiosity to learn more about it. And also, you have, in case of any encounters, what are the first steps to do, first aid to do? You have given us a good introduction. Thank you so much for that. And we are very grateful for your valuable time and enlightening presentation. I would also like to express my appreciation to all the participants who joined and had a very active engagement throughout the session. I hope you keep this enthusiasm and learn more about and actually practice what we learned today in the session. We look forward to more continued support and participation in the upcoming webinars. We'll be conducting webinars similar like this in a very interesting session. You can also suggest to us what do you want to learn so we can bring in experts accordingly. Once again, thank you all and thank you so much. Thank you, Spirit. Madam, I have a humble submission to you. Yes, I yes, have a sir. humble submission to you. Yes, sir. Madam, please make a easier system so that we can log in quick. I Sure, have sir. to wait 30 minutes for login. Sure, sir. Like our registration process actually doesn't take that much, but we'll look into it, sir, because we need to have a registration. Otherwise, we wouldn't know who all to contact next for the upcoming session, but we'll look into it, sir, definitely. Thank you, madam. Thank you. Sure, sir, sure. For the opportunity. Thank you for sharing the experience. Thank you very much. Sure. Sure. Thank you. Thank you very much. Thank you. Manjeet ma'am, just to clarify, so this poll that we have put up in the second question, Acha houses in rural areas, I believe in the presentation it was low risk for snakes. I could not see that. Oh, you can see, you can't see. Thank you all. Acha, okay. I saw now. Acha houses, high risk. All right. High risk. Okay. Thank you all. Thank you.